तो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में पहाड़ी पेंटिंग और राजस्थानी पेंटिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम लोगों का अगला चैप्टर है, अगला सिलेबस में चैप्टर है हम लोगों का द मुग़ल एंड दक्खनी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो जिसमें मेवाड़ और बूंदी आज हम आपको बताएंगे। देखिए, दक्षिणी पेंटिंग क्या होती है, दक्षिणी पेंटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। एक बार इंग्लिश में आपको बता देते हैं, नोट करना है नोट करिए, फिर इंग्लिश में। दक्षिणी पेंटिंग हेडिंग्स। दक्षिणी पेंटिंग इज़ द फॉर्म ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग प्रोड्यूस इन द दक्षिणी regions of central India in the various Muslim capitals of Dakhin Sultanate that emerged from the breakup of the Brahman Sultan by 1520. These were Bijapur, Golconda, Ahmednagar, Bidar and Berar. The main period was between the late 16th century and the mid 17th, with something of a revival of the mid 18th century by then centered of Hyderabad. The high quality of early miniatures suggests that there was already a local traditional, probably at latest party of murals in which artists had trained compared to the early Mughal painting evolutions at the some time of the North Dakhin painting extend in the brilliance of their color, the spot and artist of their composition and a general air of distant luxury. Dakhini painting was less interested in realism than the Mughals, interested pursuing a more inward journey with mystic and fantastic overtones. Other differences include painting face not very expertly model in three-quarter view rather than mostly in profile in the Mughal style, and tall women with small heads wearing saris. There are many royal portraits and earthly they lacks the price likeness of their Mughal equalization. The often can be the vivid impression of their rather bulky subject. Buildings are depicted as totally flat screen like panels. The painting are relative the painting of relative and few are signed or detected or indeed inscribed at all. Very few names are known compared to the generally well documented Mughal imperial workshops. The Muslim rulers of the Dakhin, many of them saw and had their own links with the Persian world rather than having to rely on those of the imperial Mughal court. In the same way, contacts through their large textile trade and neighboring Goa led to some indefinite borrowing from European image, which perhaps had a more generally stylized influence as well.
There also appears to have been Hindu artists who moved north to the Dakhin after the Sultanate combined to heavily defeat the 1565 and sack the capital हम्पी। इसका सब्जेक्ट क्या था और स्टाइल क्या थी? Beside the usual portraits and installation to literature works, there are sometimes installed storylines such as the Tuzuk a Safia a Dakhin specialist is the composed animal, a large animal made up of many smaller images of the animal. A composite and an elephant are started here. Rulers are often given large holes following Mughal president servants fan their masters of mistakes with cloth rather than the peacock feather fans seen, and words usually have the strength Dakhin form. Elephants were very popular in both the life and art of the Dakhini courts, and artists revolved in depicting theme behaving broadly during the month hormonal overloads effect bull elephant. Apart from elephants, studies of animal or plants were less common in the Dakhin than in Mughal painting, and when the Oshir then often have less realistic style with a fanciful palette of intense colors. Usually for India, there was a significant imported population, a Asian in the Dakhin, a few of whom rose to high proportion as soldiers, ministers of courts. Malik Ambar of Ahmednagar, a Akhlaq Khan of Bijapur were the most famous of these. A number of portraits survive of both as well as other of indefinite figures. One of the most important patterns of the style was Sultan Ibrahim Adil Shah of Bijapur, himself a very accomplished painter as well a musician and poet. He died the same year as Jahangir, the last Mughal empire, to an pattern of painting other than imperial portraits. The portraits famous 1519 installed above, which comes from the same periods as Akbar's artists at the Mughal court, were developing the Mughal portraits style, so a confidential but very different style. The extreme close-up view was to remain most unusual in Indian portrait, and has been suggested it was directly influenced by European paints, especially those of Louis Cranch the Elder, which was Sayan's number of the futures. तो डियर स्टूडेंट, अब इसको हम हिंदी में बता देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दक्षिण पेंटिंग का रूप है भारतीय लघु चित्रकला में। दक्षिण पेंटिंग का रूप है भारतीय लघु चित्रकला में उत्पादित दक्षिण के क्षेत्र में
मध्य भारत के विभिन्न मुस्लिम राजधानियों में दक्खनी सल्तनत की अलग होने से उभरा। बहमनी सल्तनत 1520 द्वारा इन थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। मुख्य अवधि 16वीं शताब्दी के मध्य और 17वीं शताब्दी के मध्य के बीच थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में कुछ पुनरुद्धार के साथ तब तक हैदराबाद पर केंद्रित था। तो डियर स्टूडेंट, प्रारंभिक लघु चित्रों की उच्च गुणवत्ता से पता चलता है कि पहले से ही एक स्थानीय परंपरा थी, संभवतः कम से कम आंशिक रूप से भित्ति चित्र, जिसमें कलाकारों ने प्रशिक्षित किया था। उत्तर में एक ही समय में विकसित होने वाली शुरुआती मुगल पेंटिंग की तुलना में दक्षिण पेंटिंग उनके रंग, उनकी रचना के परिष्कार और कलात्मक और परिवर्तनशीलता की एक समानता हवा से अधिक है। दक्षिण पेंटिंग मुगलों की तुलना में यथार्थवाद में कम दिलचस्पी रखती थी, बजाय इसके कि एक अधिक अंदरूनी यात्रा, रहस्यवादी और शानदार ओवरटन के साथ। अन्य अंतरों में पेंटिंग चेहरे शामिल है, बहुत ही स्पष्ट रूप से मॉडलिंग नहीं की गई है। 3/4 दृश्य में बजाय मुगल शैली में प्रोफाइल में और छोटे सिर वाली लंबी महिलाएं साड़ी पहने हुए हैं। कई शाही चित्र हैं और यद्यपि उनके पास मुगल समकक्षों की सटीक समानता का अभाव है, वे अक्सर अपने बल्कि भारी विषयों की एक विशद छाप देते हैं। इमारतों को पूरी तरह से फ्लैट स्क्रीन जैसे पैनल के रूप में दर्शाया गया है। पेंटिंग अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं और कुछ पर हस्ताक्षर किए गए हैं या दिनांकित हैं। यह वास्तव में बिल्कुल खुदा हुआ है। बहुत कम नामों के आमतौर पर अच्छी तरह से प्रलेखित मुगल शाही कार्यशालाओं की तुलना में जाना जाता है। दक्षिण के मुस्लिम शासकों, जिनमें से कई शिया थे, फारसी दुनिया के साथ उनके अपने संबंध थे, बजाय उन शाही मुगल दरबारियों पर भरोसा करने के। इसी तरह बड़े कपड़ा व्यापार और पास के गोवा के माध्यम से संपर्क यूरोपीय छवियों से कुछ पहचान योग्य उधारों के लिए नेतृत्व किया, जो शायद एक अधिक सामान्य शैलीगत प्रभाव भी था। 1565 में विजयनगर साम्राज्य को बुरी तरह से हराने के लिए और राजधानी हम्पी को बर्खास्त करने के लिए संयुक्त रूप से सुल्तानों के बाद दक्षिण में उत्तर में चले गए हिंदू कलाकार भी दिखाई देते हैं। विशेष शैली इनकी क्या थी? साहित्यिक कार्यों के लिए सामान्य चित्रों और चित्रों के अलावा कभी कभी सचित्र वर्णक्रम भी होते थे, जैसे कि तुजुके आसाफिया एक दक्षिण विशेषता कभी कभी अन्य मीडिया में भी पाई जाती है, जैसे कि हाथी दांत मिश्रित जानवर एक बड़ा जानवर है जो अन्य जानवरों की कई छोटी छवियों से बना है। यहाँ एक समग्र बुराक और एक हाथी का चित्रण किया गया है। मुगल मिसाल के बाद शासकों को अक्सर बड़े प्रभामंडल दिए जाते थे। नौकरों ने अपने स्वामी या मालिकिनों को पंखे या पंख के बजाय पंखों या मोर पंखों वाले पंख कहीं और देखा, और तलवारें आमतौर पर सीधे दक्षिण का रूप होती हैं। दक्षिणी अदालतों के जीवन और कला दोनों में हाथी बहुत लोकप्रिय थे, और कलाकारों ने बैल हाथियों को प्रभावित करने वाले अवधि मस्त हार्मोनल अधिभार के दौरान बुरी तरह से व्यवहार करने का चित्रण किया था। घोड़ों और हाथियों के शरीर में मार्बल प्रभाव का उपयोग करते हुए कुछ रंगों के साथ एक चित्र भी थे। हाथियों के अलावा मुगल चित्रकला की तुलना में जानवरों या पौधों का अध्ययन दक्षिण में काम आता था, और जब वे होते हैं तो उनके पास अक्सर कम यथार्थवादी शैली
होती है जिसमें गहन रंगों का काल्पनिक पैलेट होता है। भारत के लिए असामान्य रूप से दक्षिण में अफ्रीकी लोगों की एक महत्वपूर्ण आयातित आबादी थी, जिनमें से कुछ सैनिकों, दरबारियों के रूप में उच्च पदों पर पहुँचे। अहमदनगर के मलिक अंबर और बीजापुर के इखलास खान इनमें से सबसे प्रसिद्ध थे। कई पोर्ट्रेट दोनों से बचे हैं, साथ अन्य अज्ञात व्यक्ति भी हैं। तो डियर स्टूडेंट, शैली के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षकों में से एक बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह थे, जो खुद एक बहुत ही कुशल चित्रकार थे, साथ ही एक संगीतकार और कवि भी थे। उनकी मृत्यु उसी वर्ष हुई जहां मुगल बादशाह जहांगीर थे, जो शाही चित्रांकन के अलावा चित्रकला के एक उत्साही संरक्षक थे। 1590 यानी 5090 ऊपर वर्णित है, जो उसी अवधि से आता है जब मुगल दरबार में अकबर के कलाकार मुगल चित्र शैली विकसित कर रहे थे। एक आत्मविश्वास से भरपूर लेकिन बहुत अलग शैली को दर्शाता है। चरम नज़दीकी दृश्य भारतीय चित्रांकन में सबसे असामान्य रहना था और यह सुझाव दिया गया है कि यह सीधे यूरोपीय प्रिंटों से प्रभावित था, विशेष रूप से लुकास क्रैच द एल्डर, जिसके पास यह सुविधाएं साझा करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये दक्षिण पेंटिंग थी। दक्षिण पेंटिंग के बाद हमारा क्या है, अब पढ़ते हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ पेंटिंग क्या थी? डियर स्टूडेंट, मेवाड़ अब रह गया मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली को हम आप लोगों को बता देते हैं। मेवाड़ शैली क्या थी? शैली मतलब स्टाइल होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मेवाड़ की स्थिति आरंभिक राजस्थानी चित्रकला के प्रथम दर्शन का स्रोत मेवाड़ है। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण भाग में 30 डिग्री 49, 20 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश एवं 73 डिग्री 1, 75 डिग्री 49 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मेवाड़ अथवा मेव अथवा मेर जाति के विकास तक इस क्षेत्र में निवास करने के कारण इसे मेवाड़ एवं मेदपाट कहा जाता रहा। यह दोनों शब्द 10वीं शताब्दी से प्रचलित रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित मेवाड़ भूखंड, जो सन 1948 ईस्वी में राजस्थान प्रदेश में विलय हुआ, आज चित्तौड़, उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिलों में वर्गीकृत है। मेवाड़ के आरंभिक चित्र मेवाड़ क्षेत्र चित्रकला के प्रति कभी उदासीन नहीं रहा। आहड़ आदि स्थानों से प्राप्त प्राचीनतम चित्रावशेष इसके साक्षी हैं। यहाँ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूनों में शावक पौड़की कम सूत चुन्नी मतलब श्रावक प्रति क्रमण सूत्र चूड़ी का नाम आते हैं, जो 1317 में उदयपुर के आहड़ स्थान पर ही गुहिल तेज सिंह के समय चित्रित हुई थी। महाराणा लाखा, मोकल एवं कुंभा का काल आंतरिक शांति का काल था। इस चित्रकला का दूसरा सचित्र ग्रंथ कल्पसूत्र 1418 मतलब 1418 है, जो सोमेश्वर ग्राम मोहवाड़ में चित्रित किया गया। मोहवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में
निर्मित जैन ग्रंथ सुपार्श्वनाथचर्यम मतलब सुपार्श्वनाथ चरित्रम में मिलते हैं। इसका रचना काल 1423 ईस्वी है। तो डियर स्टूडेंट, इसका ऐतिहासिक पीठिका एवं चित्रकला का विकास कब हुआ? महाराणा कुंभा के जैसे कि दिया है। ऐतिहासिक पीठिका एवं चित्रकला का विकास महाराणा कुंभा 1433-1468 ईस्वी का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में कला का स्वर्ण युग कहा गया है। महाराणा कुंभा स्वयं कवि, कला संरक्षक एवं संगीतज्ञ थे। आपके काल में सूत्रधार मंडन द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन आदि ग्रंथों में मूर्ति कला के साथ रंगों की भी जानकारी दी गई है। राजवल्लभ मंडन में तो चित्रकला विषयक सामग्री भरी पड़ी है। महाराणा कुंभा के स्वरचित ग्रंथ संगीत राज में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख है। आपने गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति एवं संवत 1492 में रसिकाष्टक ग्रंथों आदि कई सुंदर ग्रंथों की रचना करवाई। चित्तौड़ व कुंभलगढ़ किलों में स्मारक आज भी कुंभा संस्कृति के जीवन का उदाहरण है। महाराणा कुंभा के पश्चात राणा सांगा गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात संग्राम सिंह 1509-1528 ईस्वी ने मेवाड़ की सत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाया और उसने बाबर से भी युद्ध किया। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह मीराबाई से संपन्न हुआ, जो भक्ति पद आज भी गुजरात, बुंदेलखंड, राजस्थान के लोकप्रिय गीत हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा मेवाड़ चित्रकला का, और मेवाड़ चित्रकला के बारे में बहुत कुछ है। तो मेवाड़ चित्रकला के बारे में इतना ही। मेवाड़ शैली चित्रों की विशेषताएं पढ़ लीजिए। मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं हैं। प्रकृति है, पुरुषाकृति तथा वस्त्राभूषण है, स्त्री आकृति तथा वस्त्राभूषण है, विषय है। ठीक है। प्रकृति क्या है? मेवाड़ के चित्रकारों ने प्रकृति को अलंकारिक रूप में चित्रित किया। ठीक। डियर स्टूडेंट, पर्वत तथा चट्टानों इत्यादि को बनाने में आलेखन और अलंकरण को ही महत्व प्रदान किया गया है, जो मुगल तथा फारसी शैली में अंकित है। पृथ्वी को ज़्यादातर लाल, हरे एवं पीले रंग से चित्रित किया गया है। कुंजों, लताओं, वृक्षों और पुष्पों की अधिकता है। वृक्षों के पत्ते, पुष्पित पौधे या पेड़ के पत्तों के साथ पुष्पों के गुच्छे अंकित किए गए हैं। कुंज अर्धचंद्राकार, मेहराबों की भांति तथा ऊन पर छाई पुष्पित लताओं से बनाए गए हैं। जल को अपभ्रंश शैली के समान टोकरी बुनने वाली अभिप्रायों से चित्रित किया गया है, जो अलंकरण युक्त है। आम्र वृक्ष, अशोक वृक्ष इत्यादि के अंकन में नैसर्गिकता लाने की चेष्टा की गई है, तथापि सजावटी वृक्षों पौधों में कृत्रिमता दिखाई देती है। पुरुषाकृत तथा वस्त्राभूषण। पुरुषाकृत मतलब पुरुष मानवाकृति, लंबी, चेहरा गोल व अंडाकार है। चिबुक और गर्दन का भाग अधिक भारी तथा पुष्ट बनाया है। मुख पर बड़ी बड़ी मूछें और विशाल नेत्र हैं। अधर प्रायः खुले हुए, सिर पर मेवाड़ी पगड़ी, जीभ पर काली कलगी, सरपेच, कानों में मोती, गले में मणियों के हार तथा लंबा जामा, कमर में दुपट्टा, पायजामा और जूतियां हैं, जो राजसी वैभव दर्शाती हैं। तीसरा देता है स्त्री आकृति तथा वस्त्राभूषण। स्त्रियों की मीनाकृति आँखें
भरी हुई चिबूक, अधर कुछ खुले हुए, मुखाकृति प्रभाव उत्पादक कमनीयता लिए हुए विविध मुद्राओं में अंकित है। लहंगा पारदर्शक लुगड़ी, कमर तथा चोली लटकती हुई, कपोलों पर झूलते केस, जो केस कभी कानों के ऊपर वेड़ी से बंधे हुए चित्रित होते थे। लंबी नासिका, नथ युक्त आभूषणों में स्त्रियां कर्णफूल, कंगन, बाजूबंद, बोर, पायल पहने हैं। विषय क्या होता था उन लोगों का? मेवाड़ शैली में विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेश है। बिहारी, सतसई, सुरसागर, पंचतंत्र के उपाख्यान, कादंबरी की अद्भुत कथा, पृथ्वीराज, रासो, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, मधुमालती, नल दमयंती इत्यादि अनेक कथाओं कविताओं को चित्रित किया गया है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको आज हमने दक्षिण पेंटिंग के बारे में और मेवाड़ पेंटिंग के बारे में बताए हैं। कल आप अगली क्लास में हम आपको बूंदी पेंटिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बच्चों ध्यान से पढ़िए और वीडियो देखिए।